نہ میں نے ادارے کا نام لیا، نہ میں نے کسی آفیسر کا نام لیا، لیکن میں بین ہو گیا، بلکہ بغاوت کا پرچہ بھی کٹ گیا۔ تو میں آپ سے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ جو کل کیا گیا تحریک انصاف سپریم کورٹ پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی ریلی کی جو الیکشن کی ریلی لانچ ہے اس کی ہم کل فیصلہ کرتے ہیں، پرسوں اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم اپنی ریلی کرنے لگے الیکشن کے لیے، جس کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ ساتھ بیٹھتے ہیں ایک شام پہلے، پولیس باقاعدہ ساری جو روٹ ہے ریلی کی وہ اپروو کرتی ہے، پولیس کے ساتھ بیٹھ کے طے ہوتا ہے کہ یہ ہماری روٹ ہوگی ریلی کی۔ اگلے دن ہمارے کارکن آ رہے ہوتے ہیں، ہماری ریلیز آ رہی ہوتی ہیں، جو مل کے میں نے یہ زمان پاک سے نکلا تھا، ایک دم پتہ چلتا صبح بینک 144 لگ جاتا ہے، یعنی ریلیز کی اجازت واپس لے لی جاتی ہے، راستے میں کنٹینرز لگ جاتے ہیں، پولیس کی کنٹینجنٹس آ جاتی ہے، ہر جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر چلے ہم اب وہ ورکرز کسی کو تو صبح پتہ نہیں تھا، وہ تو رات سے پلان ہوا ہوتا ریلیز۔ اب جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے کہ یہ نہیں کہ ورکرز سے کچھ نہیں کر رہے، کسی ہمارے کبھی ورکر کو انسٹرکشنز نہیں دی جاتی کہ پولیس کے ساتھ کوئی فساد میں پڑو۔ ورکرز وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان کے ورکرز کے اوپر واٹر کیننز، وہ پرامن لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر واٹر کیننز چلنی شروع ہو جاتی ہے، جو پولیس ان کے اوپر چارج کر دیتی ہے ڈنڈوں سے۔ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ آنسو گیس چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، ہمیں یہاں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے ریلیز کے لیے، ہم یہاں جانے کی انتظار کر رہے ہیں، اور ایک دم یہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ادھر روک دیا، فلانی جگہ روک دیا، اور پھر آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی آنسو گیس چل رہی ہے۔ لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ پیمرا پھر ایکشن میں آ جاتی ہے، اور پیمرا فیصلہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ دکھانا ہی نہیں سب کچھ، تو پھر ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا۔ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا سے پتا چلتا ہے مجھے یہاں بیٹھے کہ ہو کیا رہا ہے، اور مجھے بڑی جلدی سمجھ آ گئی کہ یہ کیا سازش چل رہی ہے۔ سازش کیا ہے؟ ذرا ساری قوم سمجھ جائے کہ سازش کیا ہے۔ وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے، اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے، پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں 10 سال نہیں آؤں گا، اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں، وہ پھر سے صحت کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے۔ وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے، عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا، اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی، میری کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپرٹیز باہر نہیں، میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپرٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آیا ہوں، بینکنگ چینلز کے تھرو، پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو، ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے، میں نے پراپرٹی کدھر خریدی، بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لندن سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، یہاں سے اربوں روپیہ چوری کر کے لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپرٹیز لیتا ہے، اس کا بیٹا اربوں روپے کی پراپرٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں، سارا یہاں کا پیسہ ہے، اور ایک رسید نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو، اور لگتا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنی چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا
جو وہ تسلیم حیدر جو لندن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور ارشد شریف کا قتل ہونا چاہیے، اور وہ وکیل جس نے ریپرزینٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی تھی، اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس میں شہباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شہباز شریف اور دوسرا یہ جو رانا ثناء اللہ، یہ سب قاتل ہیں، اور پھر ڈرٹی ہیری۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک چل رہا ہے اس آدمی کے کہنے پہ؟ منی لانڈرر، مجرم، سزا یافتہ، جھوٹ کے اوپر بھاگا ہوا کہ عمران خان کو آپ نے کیمپین نہیں کرنے دینی۔ تو یہ پہلا قدم تھا اس کا۔ جب مجھے سازش کی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں اکسا رہے ہیں، فوری طور پہ میں نے، کیونکہ مجھے ٹی وی پہ تو بین کیا ہوا تھا، میں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ہم سارے کارکنوں کو کہا کہ اب آپ واپس چلے جائیں۔ ہم نے ریلی کینسل کر دی۔ کیوں ریلی کینسل کی؟ کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آپ تصادم چاہتے ہیں، اور یہ میرے اوپر ڈالنا تھا کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کروا دیا، تو میں نے ریلی کینسل کر دی۔ لیکن مجھے تب تک پوری طرح علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنی شروع ہوئی کہ انہوں نے کس قسم کا ظلم کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف یہ 30-40 سیکنڈ کی یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا یعنی تحریک انصاف کے کارکنوں نے کچھ کیا۔ یہ ذرا دیکھیں کہ وہاں انہوں نے پولیس نے کس بے دردی سے جو کیا، یہ دیکھیں پلیز۔ انہوں نے کچھ بھی لایا ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا بلایا۔ کیا حال ہے شاہ جی؟ آپ کو بھی پکڑ لیا تو پھر اب کیا جاتا ہے آپ کا؟ کوئی بات نہیں، خاص کی خاطر جان جی نہیں تو تیار ہے۔ یہ بے گناہ ہمیں پکڑی ہے، یہ دلی شاہ ہمارے موجود ہے، یہ دیکھیں پی ٹی آئی کارکن علی بلال کی موت تشدد سے ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ علی بلال کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے۔ یہ مقبوضہ کشمیر کے نہیں، یہ پاکستان کے ہیں، یہ اپنے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ درجنوں گاڑیاں توڑی، وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں، ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے آپ پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے، ان کے حال دیکھیں۔ یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ، ایک پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے ذل شاہ جو علی بلال سے کیا، مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا۔ اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے، لیکن وہ ایک دیوانہ تھا۔ تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا، جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی، جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی، آئی وٹنسز سامنے ہیں، سب کو پتا کیا ہوا۔ اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا، اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی،
एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है? कौन? जुर्म क्या था इसके? और वो जो जिले शाह था, यहां सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे। वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी, बाहर से इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था। और मुझे अफसोस ये है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दह चीज ये है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया। और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया है। 2 और मुकदमे डाल दिए मेरे। अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर। इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात। मुजरिमों ने मुल्क को संभाला हुआ है। कातिल, चोर, मनी लॉन्ड्रर्स, डाकू, झूठ बोलने वाले, सारा पैसा बाहर पड़ा है इनका। पाकिस्तान में इनको कुछ, पाकिस्तान तो लूटने आते हैं। ये इलाज इनके बाहर, सर्जरीज इनकी बाहर, ईदें इनकी, शॉपिंग इनके बाहर, बिजनेसेस इनकी बाहर। ये सिर्फ मुल्क लूटने के लिए आते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। इन्होंने आके मुल्क से वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 100 रुपया सिर्फ 10 महीने के अंदर रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में। इसका क्या इंपैक्ट आएगा? अभी महंगाई की जो लहर आएगी, जो लोगों को गुर्बत की लकीर के नीचे जाएंगे, जो एस्टिमेट किया जाता है कि करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके तो डॉलर्स में पैसे इजाफा हो गया। ये लोग आज ये हरकतें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को बंद किया जाए, आवाज बंद, उसको कत्ल करो, मारो, जेल में डालो। कल का ये जो सारा हुआ, ये हमें जब साजिश की समझ आई, जब मैंने खत्म किया, साजिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरह इलेक्शन कैंपेन ना करने दो और इमरान खान को किसी तरह जेल में डालो। रात को यहां सारे इन्होंने रास्ते बंद कर दिए ज़बान पाक के। यहां इन्होंने सारा बिजली काट दी ज़बान पाक की, अंधेरा कर दिया। यहां पूरी तैयारी ऑपरेशन की हो गई। इमरान खान को यहां से उठा के बलूचिस्तान लेके जाना था। 2.5 महीने उसको जेल में रखना था। तब तक हमारी पार्टी को क्रश करना था और जो बोलने वाले हैं उनको सजाएं देनी थी, उनको भी जेलों में डालना था। और उसके बाद कंट्रोल्ड इलेक्शन करवा के तो फिर इन चोरों को मुसल्लत कर देना था। ये था प्लान। और क्योंकि मुझे लगता है इसलिए कि इतना शोर मच गया सोशल मीडिया पे कि जिस तरह बेदर्दी से इन्होंने उसको शहीद किया जिले शाह को, उसकी वजह से इन्होंने प्लान नहीं किया। मुझे पूरी उम्मीद है ये आज आएंगे या कल आएंगे। उठाना इन्होंने है। ये मैं आज कौम को सारों बता दूं कि इनके प्लान के अंदर वो जो लंदन में बैठा हुआ भगौड़ा है, उसके प्लान के ऊपर उसने कोई एग्रीमेंट की हुई है, उस पर चल रहा है पाकिस्तान। तो इमरान खान को जेल डाल रहे हैं इन्होंने। खैर, मैं तैयार हूं उसके लिए, जेल के लिए तैयार हूं, बल्कि मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो कल हुआ है, ये आपके सामने क्या हुआ। इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, ये कौन सी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि एक पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेन की रैली कर रही है, लॉन्च कर रही है, उसके ऊपर कौन दुनिया में ऐसे कर सकता है? और कौन से ऑफिसर्स करते हैं? वो ऑफिसर्स जिन्होंने 25 मई को हमारे पर जुल्म किया था। हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया कि ये जो 23 या 24 ऑफिसर्स हैं, इनको यहां पोस्ट ना करो। हजारों ऑफिसर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको वापस हमारे ऊपर पोस्ट कर दिया और उन्होंने वो सारे जुल्म के पीछे थे। और केयरटेकर का मतलब न्यूट्रल होता है। मैं बार बार अपनी कौम को बताना चाहता हूं, न्यूट्रल केयरटेकर होता है, मतलब गैर जानबदार होता है। ये गैर जानबदार है जिन्होंने सिर्फ एक एजेंडा पे आए हैं कि क्रश कर दिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान। और मैं फिर से अभी इलेक्शन कमीशन को, अभी मैं बाद में बात करूंगा इलेक्शन कमीशन में, लेकिन अभी कहता हूं कि देखिए, ये आपके ऊपर सारा पड़ रहा है। आप कैसे एक इस तरह का केयरटेकर सेटअप ले आते हैं दोनों जगह पे?
KP में और इधर, जो हमारे मुखालिफ को ऊपर बिठा देते हैं। यानी कोई तो एक इंसान में अखलाकियात होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई अच्छे बुरे की तमीज होती है, कोई फेयरनेस होती है, कोई इंसाफ के अंदर कोई थोड़ा सा सोच होती है। ये कैसे कर सकते हैं किसी पर कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर बढ़ा दिया जो जैसे कसम खाई हुई है कि किसी ना किसी तरह उसने तहरीक इंसाफ को खत्म करनी है, वो ऑफिसर सारे वो बैठा दिए हैं। और फिर अब एक और काम होने लगा, अब इन्होंने फैसला किया है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इलेक्शन करवाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स वो नहीं होंगे जो कि अदलिया से लिए जाएंगे, बल्कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। अब ये ब्यूरोक्रेसी का तो हाल देखिए आप, क्या इसी ब्यूरोक्रेसी और ये जो चीफ मिनिस्टर ये रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा? तो यहां से पहले ही नजर आ गया कि यहां इलेक्शन में इन्होंने जिस तरह की धांधली का प्लान बना हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को अभी भी है कि रिक्वेस्ट करें कि अदलिया के रिटर्निंग ऑफिसर्स आए, क्योंकि यहां से तो कोई उम्मीद नहीं है, ये जो लोग हैं इनसे तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये जब केयर टेकर ये ब्यूरोक्रेट्स लेके आएगा तो इनका तो एजेंडा वाज़ेह है। मैं दूसरी बात अब करना चाहता हूं। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। सारी कौम ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई हुई है। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कब्जा हुआ है इन मुजरिमों का, और जो लोग इनको बैक कर रहे हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने तो सारा अपना वाज़े कर दिया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, हर रोज कत्ल हो रहा है। ये जो केयर टेकर बनाई है, इसी से ही समझ आए कि जमहूरियत क्या होगी। वही बताएं जो कल एक इलेक्शन रैली के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया है, तो आपको तो पता चल जाना चाहिए कि ये जो सारे मिल के कर क्या रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ आपसे एक चीज चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप आइन के साथ खड़े हो। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। उम्मीद सिर्फ अब आप पे है, और मुझे पता है कि आपको पूरा तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो माफिया है, माफिया करता क्या? ये जो जिसको सिसिलियन माफिया कहा था, ये कौन है? या ये लोगों को खरीदते हैं, या ये लोगों को एलिमिनेट करते हैं, उनके ऊपर टेप्स बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, हर किस्म के उनके ऊपर गंद उछालते हैं, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करते हैं अपने फैसले लेने के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन करके तो फैसले करवाते हैं जजेस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने डंडे से अटैक करके सुप्रीम कोर्ट को एक ईमानदार, दयानतदार चीफ जस्टिस को इन्होंने फारग करवाया और फिर रिश्वत चलाई, बाकी जजेस खरीदे। मैं सुप्रीम कोर्ट को आज अपने सारे जजेस को सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने आइन के साथ खड़े होना और जमहूरियत के साथ खड़े होना, क्योंकि अगर इस वक्त जो इनकी कोशिशें हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये इलेक्शन से किसी ना किसी तरह निकलेंगे, ये कत्ल करवाएंगे लोगों को, ये बड़े नामों को कत्ल करवाएंगे, धमाके करवाएंगे सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए। ये हर बहाना इस्तेमाल करेंगे कि जी पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या सेंसस हो गया तो ये हो गया। ये हर चीज इस्तेमाल करेंगे किसी ना किसी तरह इलेक्शन से निकलने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में इनकी मौत है। इनको पता है कि पाकिस्तानी कौम इनसे मुतनफिर हो चुकी है, वो इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। सारे बाई इलेक्शन में वाजे हो गया कि ये धांधली के बावजूद, सारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद ये नहीं जीत सकते, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे खौफ ये है कि ये किसी ना किसी तरह ये माफिया अदलिया के अंदर फूट डाल के उसको तकसीम करके ये कोशिश करेंगे इलेक्शन से निकलने के लिए। मैं इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी यूनिटी की जरूरत है। आप मुत्तहद होकर पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े। 5 के 5 जजेस ने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। अब पख्तूनख्वा में देख लें, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शंस डिले करने के चक्कर में अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और जबकि
सबको पता है कि अब हमारे पास टाइम जो टाइम था इलेक्शन करवाने का वो कम होता जा आगे हम आगे निकल गए। 30 अप्रैल जाना भी गलत था क्योंकि आइन तो इजाजत नहीं देता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जान के सैबोटाज करने की कोशिश की 30 अप्रैल देनी पड़ी, तो ये उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी अदलिया के साथ अदलिया को सिर्फ कौम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं, कौम आपके साथ खड़ी है। कौम वो और हम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे इंसाफ चाहते हैं, आपसे जो इस मुल्क का आइन है उसकी दिफा चाहते हैं। ये जो माफिया है ये जब फैसला इनके खिलाफ आता है ये अटैक कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब फैसला साथ आता है तारीफें शुरू कर देते हैं प्रेशराइज करके। मैं आपको सिर्फ आखिर में रिमाइंड करवा दूं कि जब जो धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला था 2015 में, वो हमारे खिलाफ किया, हमें बड़ी तकलीफ हुई। एक दफा बताएं कि मैंने उसकी कोई तनकीद की, हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब मैंने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की अप्रैल के अंदर, पिछली अप्रैल में मैंने इलेक्शंस अनाउंस कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सारा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत हो रही थी वो सारी हो रही थी कि इलेक्शंस में अब चले जाए, और वो चले जाते मुल्क बच जाता इस अजाब से। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने वहां कहा जी मैं 3 महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, और वो फैसला हमारे खिलाफ चला गया। बड़ी तकलीफ हुई हमें। एक दफा बताएं कि मैंने तनकीद की उसकी, लेकिन ये हर फैसला जो इनके खिलाफ जाता है उसके ऊपर ये ब्लैकमेल करते हैं, नाम ले लेके जजेस के खिलाफ बात करते हैं। और इसलिए जरूरत है सारे मुल्क को कि अगर हमने अब आगे जाना है, और इसकी मुल्क की बचत ही रूल ऑफ लॉ में, मुल्क बचेगा तब जब कानून की हुक्मरानी हो, वो उसकी दफा करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। और हम सिर्फ आपसे अपील कर सकते हैं कि ये आपको हर प्रेशर डालेंगे, हर वो नामालूम अफराद से प्रेशर आएगा, इन चोरों से आएगा, ये रिश्वत भी ये खरीदते भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कौम सारी आपकी तरफ देख रही है, और हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सबने कहा था आइन के अंदर 90 दिन में इलेक्शन, उसके साथ आपको पूरी तरह खड़ा होना चाहिए। अब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब तीसरी बात करना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन कमीशन, मुझे जितनी तकलीफ इलेक्शन कमीशन से है किसी को नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर, आपने एलिगेशन लगाई तोशाखाना की, मैं आज राइटिंग में देता हूं सबके सामने, जिस वक्त ये अदालत में जाएगी ये तोशाखाना केस बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई चीज गैर कानूनी नहीं की। जो 70 साल से पाकिस्तान का कानून है उसके ऊपर चलाऊं, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, सारा कुछ, सारा रिकॉर्ड में अवेलेबल है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये तोशाखाना, क्यों ये छुप रहे हैं, बता नहीं रहे कि जी बाकी लोगों के तोशाखाना में क्या उनकी थी। जिस वक्त वो सामने आएगा कौम को पता चलेगा कि तोशाखाना में बाकी लोगों ने क्या किया है। बाकी हुक्म, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो प्रेसिडेंट्स थे, जो आर्मी चीफ्स थे, ये क्या करते रहे तोशाखाना की गिफ्ट से। वो इंशाल्लाह अगर ये पूरा केस खुले ताकि पता तो चले लोगों को तोशाखाना क्या है। तो मुझे बड़ी तकलीफ है कि मेरे ऊपर इन्होंने, किरदार के ऊपर इन्होंने ये जो उठाया है इलेक्शन कमीशन ने। और फिर फॉरेन फंडिंग, ये भी हमें घसीटा है मीडिया ट्रायल के थ्रू। पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, अब पता चले प्रोहिबिटिव फंडिंग है। लेकिन अगर आपने ये करना ही था, हमारे केसेस सबके सामने हैं, बुक्स सारी कौम के सामने है, लेकिन इन दो पार्टीज की क्यों नहीं सामने लेके आ रहे हैं, ताकि पता तो चले कि इन्होंने फंडिंग किधर से करते हैं। तो मुझे तकलीफ इसकी है। लेकिन मुल्क की खातिर, जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपने कातलों को, जिन्होंने कत्ल करने को, उनको भी माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी सब कुछ जो मुझे जाती तौर पर तकलीफ और हमारी पार्टी को भी, उसको भी माफ कर देता हूं। लेकिन इस वक्त कौम की जरूरत है, अगर हमने इस मुल्क को दलदल से निकालना है, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हुआ या इंतशार होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां इस इलेक्शन को सही तरह ना करवाया गया, और इसमें जिस तरह की धांधली प्लान की जा रही है, ये जो केयर टेकर है, यही धांधली है। क्योंकि केयर टेकर तो होता है गैर जानबदार, ये तो बिल्कुल दुश्मनों को ऊपर बिठा दी है। तो ये ही धांधली है।
और उसके बाद जो भी कदम है, जो प्लानिंग हुई, मेरी सिर्फ आपको अपनी कौम की तरफ से कि आपको इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहिए, और किसी सूरत पहले ये जो गलत केयर टेकर अपॉइंट किए, इनके जरिए रिटर्निंग ऑफिसर्स इनकी ब्यूरोक्रेसी पे नहीं बल्कि जुडिशरी से मांगनी चाहिए, जो अदलिया से हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करना चाहिए। और फिर आखिर में मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। देखें, ये जिधर हमारा मुल्क खड़ा है, ये आप सब समझ जाएं कि हम अगर ये जो जुल्म हो रहे हैं, ये जो नाइंसाफियां हैं, ये जिस तरह के ऊपर जोर मुसलत कर दिए गए हैं, और फिर इनको ऊपर बिठाने के लिए हर किस्म की कोशिश हो रही है, डराना, धमकाना, FIRs, मारना, ये जो आपके साथ, जब तक कौम इसके साथ इसका मुकाबला नहीं करेगी, अगर कौम इन जालिमों के सामने सर झुका गई और हमने खौफ की वजह से इनके सामने स्टैंड ना लिया, तो आगे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुस्तकबिल नहीं। क्योंकि अगर आप चोरों को किसी भी कौम के ऊपर बैठा देंगे, किसी कौम का भी कोई मुस्तकबिल नहीं। आज जो दुनिया में गरीब मुल्क हैं, मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, एक मुल्क देख लें आप, उनकी गुर्बत आपके आखिर में वो लोग कहेंगे जी जो हुक्मरान बैठे हैं वो पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं। लेबनान है, सबसे ज्यादा लेबनान जो था वो, अब दुबई लोग जाते हैं ना, तो हम जब बड़े हो रहे थे सब बेरूत और लेबनान जाते थे। आज लेबनान का दिवालिया निकल गया। लोगों से पूछें, उनके ऊपर करप्ट लोग बैठ गए आगे, वो कहते हैं करप्शन में मसला था। नाइजीरिया सबसे ज्यादा तेल है अफ्रीका के अंदर, तेल के जखीरे पे बैठा है, गुर्बत की इंतहा है, वहां ऊपर पैसे चोरी करके नाइजीरिया की दौलत मुल्क से बाहर जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है। तो मैं कौम को कहता हूं कि ये लोग रह गए जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं, आपका कोई मुस्तकबिल ही नहीं। तो पहले तो मैं अपनी वकला कम्युनिटी को कहना चाहता हूं, देखिए, पाकिस्तान की वकला बरादरी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना, ये जो आइन की धज्जियां उड़ाना, ये जो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करना कि किसी तरह इलेक्शन से निकल जाओ, ये वक्त है कि जो वकला, सारे वकला को अपने सियासी इख्तलाफात दूर करके सबको इकट्ठा होना चाहिए कानून की हुक्मरानी के लिए। आपने पाकिस्तान की तारीख बदली थी जब वकला कम्युनिटी सारी खड़ी हो गई चीफ जस्टिस की बहाली में, जिसमें मैंने भी शिरकत की। मैं जेल में भी गया, पहली दफा मैं जेल, और एक ही दफा जेल में गया हूं, तब दूसरी की तैयारी कर रहा हूं अभी, तो मैं जेल में भी गया सिर्फ अपनी एक आजाद अदलिया के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए। और हमारी पार्टी छोटी सी थी, पूरी तरह शिरकत की। तो मुझे तब याद है कि वकला की मैंने जज्बा देखा, इनका जो इनकी दिलेरी मैंने देखी, और जो कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के लिए, मैंने वो अपनी आंखों के से देखी। अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भी वकला के अंदर माफिया आ गया है, और वकला के अंदर माफिया तकसीम करके बैठा है, और वो इन चोरों के साथ खड़ा है। तो मैं आप सबको अपील करता हूं कि ये टाइम आ गया है कि आपने हर तैयारी करनी है। आपने किसी सूरत इस टाइम के ऊपर अपनी अदलिया को नहीं छोड़ना, अपनी अदलिया को तनहा नहीं छोड़ना। आपने जो जुल्म हो रहे हैं, आपने इंसाफ के लिए खड़ा होना है। आपको अगर सड़कों पर निकलना पड़े, आपको निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अब जद्दोजहद नहीं करेंगे, हम इनको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। और आखिर में मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, अपनी यूथ को, हमारी माशाअल्लाह 65% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है। मुस्तकबिल आपका है। 8 लाख पिछले साल हमारे नौजवान, जब से ये चोर ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, मुल्क से छोड़ के चले गए, उम्मीद खो बैठे हैं पाकिस्तान से। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा टाइम बाहर गुजारा है। मैं आपको एक आध चीज बता दूं कि देखिए, बाहर जाके आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे, आप कंफर्टेबल जिंदगी भी गुजार सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अपना घर है,
उसका कोई मुतबादल नहीं है। आप हमेशा वहां पराये समझे जाएंगे। आपको सारा वक्त जो वो 3-4 जनरेशन्स भी वहां पैदा हो गई हैं, उनको सारा वक्त एक धमाका होता है, उनको साबित करना पड़ता है कि जी हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं और हम बड़े अच्छे शहरी हैं आपके मुल्क के जिधर भी वो रह रहे हैं, क्योंकि वो आपका मुल्क नहीं है। हाँ, कई अपना रहे आते हैं, एडजस्ट भी कर जाते हैं। कईयों को जिंदगी का मकसद ही होता है कि अच्छी जिंदगी गुजारें, गाड़ी अच्छी हो, घर अच्छा हो, तनख्वाह अच्छी हो, तो स्कूल में बच्चे अच्छे चले जाए, बस उनका मकसद ही जिंदगी का ये होता है। लेकिन जिनका इससे बड़ा मकसद होता है कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद से दुनिया में भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह हमें ज्यादा पढ़ा लिखा देता है तो हमारी जिम्मेदारी है माशरे को, और सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज मदीना की रियासत में अदल और इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी, फिर उरूज आया था, फिर उन्होंने एक जमहूरियत कायम की थी। जमहूरियत का मतलब जमहूरियत रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं बन सकती। उन्होंने बादशाहत पे नहीं मुसलमान खड़े हुए थे, और वो जो फाउंडेशन रखी थी मदीना की रियासत में, उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। और अल्लाह हमें बार बार हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी शरिया पे चलो। तो मैं सबको आज आपको अपील कर रहा हूं कि हमारा मसला ये है कि यहां इंसाफ नहीं है, और ये जो चोर ऊपर बैठ गए और एनआरओ ले गए हैं, इसका मतलब इंसाफ नहीं है। जब एक ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसका मतलब जंगल का कानून आ गया। जंगल के अंदर शेर के लिए एक कानून और बेचारा हिरन के लिए दूसरा है। तो हमें पाकिस्तान को एक वो जो इस्लामी रियासत जो बड़ी ख्वाब के नाम पे बनी थी, उसकी बुनियाद इंसाफ है। और इंसाफ के लिए जब आप खड़े होते हैं, इसको जहाद कहते हैं। और इंसाफ तो कमजोर चाहता है, ताकतवर तो अपने आप को कानून के ऊपर रखना चाहता है। तो जब ताकतवर के सामने खड़े होते हैं, ये होती है इंसाफ की जंग, जहाद। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, उनकी पहली जब वो खलीफा बने तो पहली चीज उन्होंने क्या की कि मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हमारा मसला ही नाइंसाफी है, और इसके लिए जो जालिम है, ये जो सब मिले हुए हैं, ये जो सारे इनके सहूलतकार और ये जो मनी लॉन्ड्रर्स और जो डाकू सब इकट्ठे हुए हैं, इनका सिर्फ एक मकसद है कि यहां इंसाफ ना आने दो। इमरान खान को मेरी क्या लड़ाई है उनसे? लड़ाई ये है कि ये वो चीज कह रहा है कि इस मुल्क में अगर इंसाफ आया तो जो हम यहां याशियां करते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, बड़े बड़े घर, कानून से हम ऊपर, ये उससे डरे हुए हैं। हर आदमी जो इंसाफ से डरता है, हर आदमी जो चाहता है कि हमारी स्पेशल प्रिविलेज हो, वो हर आदमी इस वक्त एक तरफ खड़ा हो गया है और कोशिश कर, उनको इमरान खान नजर आ रहा है कि किसी तरह इसको तो फारग करो। देखिए, मुझे ना जब मैं पॉलिटिक्स में आया था 26 साल पहले, मैं जब मौत का खौफ के ऊपर काबू पा चुका था, अल्लाह में ईमान आ चुका था, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ चुका था कि अल्लाह ने फैसला करने जब दुनिया से जाना। एहतियात करता हूं, एहतियात इसलिए करता हूं कि ये जो मेरे दुश्मन हैं, ये बड़े जितने खौफजदा होते जा रहे हैं, उतनी मेरी जान खतरे में है। एहतियात करता हूं। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाऊं, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ये जो लोग हैं, इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ते रहना है। ये जहाद है आपके लिए और इसी में आपका मुस्तकबिल है। अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस टाइम पे, ये मुल्क बदल जाएगा। जो मैं नया पाकिस्तान की बात करता हूं, वो नया पाकिस्तान आ जाएगा आपका, उस रास्ते पे हम निकल जाएंगे। लेकिन जुल्म के निजाम पे कभी भी कोई माशरा ऊपर नहीं जा सकता,
कुफर का निज़ाम चल जाएगा, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हज़रत अली का कौल है। ये निज़ाम कभी भी नहीं चलेगा। और आपके सामने जिधर हम गिर चुके हैं, आपको पता है कि क्यों है। कि जब आप उन चोरों को एनआरओ दे दें और बेचारा गरीब आदमी जेलों में रहे, तो उस कौम की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए जो भी मुझे पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, मैं सारी कौम को ये कहता हूं कि आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलना है। जानवरों और भेड़ बकरियों में ये फर्क होता है, भेड़ बकरियां सारे जुल्म सह जाती हैं। इंसान का बड़ा मकसद होता है, वो जुल्म का मुकाबला करता है, वो जहाद करता है और वो एक माशरे को जिंदा कर देता है। हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत थी, वो सारी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए एक चीज सामने आ गई कि जो राय हक है, उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए, आप अपने माशरे को जिंदा कर देते हैं। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो करबला की सोच सारा वक्त मुसलमान रेवोल्यूशनरी स्पिरिट में रहता है, अपने आप को फिर से खड़ा करता है कि मैंने राय हक पे खड़ा होना है। ये सीधी सीधी जंग है चोरों की और राय हक की। और इसके लिए मैं फिर से कौम को अपील करता हूं, मैं हूं या ना हूं, आपने इस जंग, इस जहाद से हटना नहीं है। क्योंकि अगर आप हट गए तो ये सारा पाकिस्तान का मतलब खत्म हो गया। फिर ये बहुत बड़ा धोखा था पाकिस्तान से।